ਹੈਲੋ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਦਾਬ ਟੂ एवरीवन। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟੀ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੀਕੈਪ ਲਵਾਂਗੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਪਰਸਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿਟੀ ਲੈਕਚਰ 2 ਤੇ। ਤਾਂ ਰੀਕੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਗੋਲਡਨ ਸਪੈਰੋ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਸਪੈਰੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 14th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੋਲਡਨ ਸਪੈਰੋ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਖ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਖ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਸਪਾਈਸਿਸ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਸਪਾਈਸਿਸ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਟਰੇਡਰ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਸਪੈਰੋ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੇਨ ਵੱਲੋਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਫॉर डिस्कवरी ऑफ डायरैक्ट सी रूट टू इंडिया। तो उन्होंने कोलंबस ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਈਸਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਸਟ ਟਰਨ ਲਿੱਤਾ ਐਂਡ ਸਡਨਲੀ ਐਂਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਡਿਸਕਵਰਡ ਅਮਰੀਕਾ। ਦੈਨ ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼ ਆਏ ਆਪਣੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀ ਰੂਟ ਲੱਭਿਆ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਟੂ ਡਿਸਕਵਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀ ਰੂਟ ਟੂ ਇੰਡੀਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੋਝੀਕੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਆਏ? 1498 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1501 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਹੋਰ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਰੈਂਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਡੱਚ, ਡੇਨਸ ਐਂਡ ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਦੈਨ ਆਈ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਯੂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਫਿਟੈਸਟ, ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਫ ਫਿਟੈਸਟ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਫਿਟ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ देयर डिप्लोमैटिक पास, ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਦੇੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੂਲ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ 1600 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੋਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਾਏ ਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਚੈਸਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਬੰਗਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ। ਦੈਨ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ 2 ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ। ਤਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੌਨਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ C ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ C। C इज़ इक्वल टू C। C इज़ इक्वल टू C ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? ਕੌਨਕੁਐਸਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੌਨਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮਸਟ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ NCERT ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੀ ਲੂਸੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਬਟ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਕੁਐਸਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਸਫੇਅਰ ਆਫ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਨਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਨਲਾਈਕ ਮੁਗਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਗਲਸ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਐਮਰਜਿਜ਼ ਆਊਟ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਪਣਾਈ, ਕੌਨਕਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ 1773 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 1773 ਤੱਕ ਲਾਅ ਬਣਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਗਲ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 1773 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਗੀ ਇਨ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਾਅ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਆਉਣਗੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773।
एक स्टूडेंट का कमेंट आया सी कि सर राइटिंग नहीं समझ आ रही, तो आई ट्राई के थोड़ा वड्डा वड्डा लिखिए, ठीक है। तो रेगूलेटिंग एक्ट 1773, ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਦਿਸ ਵਾਸ ਦੀ ਫਸਟ ਲਾਅ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਓ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਊਨ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਰੈਗੂਲੇਟ ਦੀ ਅਫੇਅਰਸ ਆਫ EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੇਗੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ। ਜੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 1773 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਫਸਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾय ਵਿਚ ਐਕਟ, ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773। ਇਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੈਲਕੱਟਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 3 ਜੱਜ ਪਲੱਸ 1 ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ। ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ एलिजा एम्पे, ठीक है जी। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773, ਮਤਲਬ ਨਾਓ ਆਲ ਦੀ ਮੈਟਰਸ ਆਫ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਂਡਡ ਬਾਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰਾਊਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ हैंडल करेगी, ठीक है जी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी ਨੂੰ हैंडल करेगी। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਜੱਜ ਤੇ 1 ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ। ਫਸਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਾਸ एलिजा एम्पे। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ गवर्नर जनरल ऑफ, ठीक है। इदू पॉइंट लिखने तो पहले थोड़ी जी एक हिस्टरी है वो समझते हैं आप, ठीक है, फिर पॉइंट लिखांगे। थोड़ा जा देखो, देखो जी ब्रिटिश ने ना 3 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸੀ ਬੰਬੇ, ਮੈਡਰਾਸ ਤੇ ਬੰਗਾਲ। ਇਹ 3 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਬੰਬੇ, ਮੈਡਰਾਸ ਤੇ ਬੰਬੇ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਗਵਰਨਰ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ, मतलब एक पर्सन ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਹੈ
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਵੈਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਰੈਟਾਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਬਣਿਆ ਸੀ 3 ਬੰਬੇ, ਮੈਡਰਸ ਐਂਡ ਬੰਗਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸੀਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ। ਫੋਰ एग्जाम्पल इंडिया टीम की गल करते हैं, क्रिकेट टीम की, जे मैं ये कह रहा कि विराट कोहली इज़ अ कैप्टन, तो इनका मतलब ये नहीं है कि बाकी टीम तो वधिया है विराट कोहली, इनका मतलब ये है कि ही इज़ द फस्ट अमंग इक्वल। तो उही चीज़ इत्थे सी भी इन्हां तिन्नां दे विच्चों सीनियर मैंबर तो सी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बट ये इन्हां नालों की है ज़्यादा पावरफुल नहीं सी। ही वॉज द फस्ट अमंग इक्वल। एक यूनीफाइड सीट तैयार करने के लिए ये प्रोसैस किया गया। हुण आपां ये पॉइंट लिख सकते हैं कि जिहड़ा गवर्नर ऑफ बंगाल है, पहला पोस्ट होंदी सी ना गवर्नर की, हुण वो पोस्ट का नाम चेंज करके की कर दिता गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है जी, तो नाम चेंज करके की करते गया GGB, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हुण आपां पॉइंट लिख सकते हैं कि पहला गवर्नर ऑफ जनरल कौन सी, फस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ही वॉज वैरन हेस्टिंग। ठीक है जी, ही वॉज वैरन हेस्टिंग। 3 पॉइंट जल्दी नोट करो, आ पॉइंट जो समझने वाला ये भी नोट करो। नैक्सट आप चलते हैं। हजे भी मैं तुहानूं सीधा कॉन्स्टिट्यूशन ते नहीं लैके जाना, स्टैप बाय स्टैप किहड़ा प्रोसैस होया, किहड़ा एक्ट आया, उहदे च किहड़े प्रोविजन सी, 1773 तो लैके 1947 तक दे एक्ट करके फिर आपां कॉन्स्टिट्यूशन बारे पढ़ांगे। ठीक है, हजे आपां हिस्टोरीकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही देख रहे हैं। जो तुसीं कहो अज दे चैप्टर का नाम भी की है, हिस्टोरीकल बैकग्राउंड। एंड वन थिंग मोर, इकल्ले पटवारी वास्ते पॉलिटी सैशन नहीं है जी, पंजाब का, इंडिया का कोई भी वन डे एग्जाम है, ईवन के PCS विच भी, पंजाब PCS के पेपर दे विच भी जे पॉलिटी दे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं जी, तो आई गारंटी कि 7 तो 8 क्वेश्चन इस सैशन, मेरे सैशन के विचों ही आउणगे, क्योंकि आपां कुछ भी नहीं छड्ड रहे। ठीक है, आपां A to Z सारी पॉलिटी करांगे। ठीक है, हुण जिन्हां दा पटवारी बनने का सपना है, ठीक है, तो उन्होंने पटवारी लग के अपनी प्रैपरेशन बंद नहीं करनी। ठीक है, आई प्रोमिस कि मैं सारा इस तो बाद पटवारी तो बाद असी होर भी बैच लैके आवांगे। ठीक है, तो पटवारी तो आप सीमित नहीं रहना, पटवारी तो अगे PCS की तैयारी भी करनी है, UPSC की तैयारी भी करनी है। ठीक है, प्लेटफॉर्म तुहानूं असी प्रोवाइड करांगे। ठीक है, तुसी बस अपने जज्बा रखना है। नैक्सट देखते हैं 4th पॉइंट, फोर्थ पॉइंट तुहानूं दस्सिया सी भी दे कोर्ट ऑफ डायरैक्टर्स। ठीक है, इहदे ते देखो, चलो दोबारा डिस्कस करते हैं। हो कोर्ट ऑफ डायरैक्टर्स की जिहड़ी टर्म है वो 4 साल कर दी गई सी। हुण कोर्ट ऑफ डायरैक्टर्स की है, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जदों इंडिया व्यापार करने लिए आ रही सी, तो बहुत सारे ट्रेडर्स, इंडिविजुअल ट्रेडर्स, कंपनीज ने अपने शेयर होल्डर उन्हां च लाते। हुण जिन्हां ने शेयर होल्डर उन्हां च लाते वो की बन गए, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स, कोर्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। हुण ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिन्ने भी शेयर होल्डर्स है वो अपने विचों 24 बंदियां नूं कोर्ट ऑफ डायरैक्टर चाहुंदे सी। मतलब कोर्ट ऑफ डायरैक्टर्स किन्ने सी, 24 मैंबर प्लस 1 जिहड़ा इन्हां दा प्रधान साहब, प्रेजिडेंट। हुण इन्हां दी सिलैक्शन कित्थों हुंदी सी जी, 25 जणियां दी कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स तो। कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स की है जी, कोर्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, जिन्हां दे शेयर है कित्थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अपनी इलैक्शन करके कोर्ट ऑफ डायरैक्टर्स चाहुंदे सी। उनकी टर्म 4 साल कर दी गई। रेगूलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग। लास्ट पॉइंट 1773 एक्ट का सी जी, जिहड़ा अपना GGB बनाया है,
जीजीपी कौन है जी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन सी? वैरन हेस्टिंग। मैनू लगता है कि मेरी पॉलिटी की वीडियोस तो बाद तुहानूं रिवीजन की भी लोड़ नहीं है, जो पिछले लैक्चर च किया वो भी याद करवाता, जो इहदे ते चल रहा मैनूं लगता तुहानूं स्टोरी दे नाल सब याद हुंदा रहेगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आया, इत्थे अपन नाल ही पिछला क्वेश्चन कर लिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन सी? वैरन हेस्टिंग। हुण गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जिहड़ा वैरन हेस्टिंग सी, उहनूं उहदी एग्जीक्यूटिव कौंसल बनाई गई। एग्जीक्यूटिव कौंसल, जिथे भी तुहानूं कौंसल का मतलब आवे ना, कौंसल कौंसल का मतलब होंदा है जी सलाहकार। तो देखो जिवें अपने प्राइम मिनिस्टर की कौंसल होंदी है, ठीक है, तो उदा ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उदों एग्जीक्यूटिव कौंसल बनाई गई। ये सारिया टर्म्स जो आप हुण प्रेजेंट डिस्कस करते हैं, वो सारिया इन्हां एक्ट्स दे विचों ही निकलियां हैं। जो एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, उनकी एग्जीक्यूटिव कौंसल सी, उनके सलाहकार सी, उही चीज़ हुण है जी प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार है। ये सारिया चीज़ां कंसैप्ट जोड़े सारे एक्ट्स के विचों ही निकले है। लोक सभा, राज्य सभा, बाई कैमरलिज्म, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कौंसल होना, प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट होना, ये सारा इनके चो ही सिस्टम आया। हौली हौली आप देखते रहेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एग्जीक्यूटिव कौंसल के 4 मैंबर, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की एक एग्जीक्यूटिव कौंसल सी, उनके 4 मैंबर से। तुसीं याद रखनिया चीज़ां, जल्दी रीकैप करिए। 5 चीज़ां आपां जिहड़ियां याद कीतियां। फर्स्ट थिंग कि जिहड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी नूं रेगूलेट करना स्टार्ट करता ब्रिटिश क्राउन ने अंडर रेगूलेटिंग एक्ट 1773। सैकेंड पॉइंट, जिहड़ा गवर्नर जिहड़े 3 प्रेजिडेंसी सीगे, उन्होंने एक यूनीफाइड सीट बना के गवर्नर ऑफ बंगाल नूं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिता गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन सी? वैरन हेस्टिंग सी। उस तो बाद कोर्ट ऑफ डायरैक्टर्स के जिहड़े 24+1 24 मैंबर, एक प्रेजिडेंट, 25 मैंबर सी, इन्हों की कर दिया गया, इन्हों की टर्म 4 साल कर दी गई। तो जिहड़ा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सीगा, उन्होंने 4 मैंबर एग्जीक्यूटिव के रखे गए, ठीक है जी। तो ये सीगा अपना रेगूलेटिंग एक्ट 1773। होप तुहानूं क्लीयर हो गया होगा। नैक्सट विल टॉक अबाउट द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कई बार आप फ्लो सारा सिलेबस याद कर लेने, बाद अपने कोई पूछता है कि पिट्स का मतलब की है जी, नहीं जी ये तो नहीं पता। पिट्स का मतलब इन्ना पता है, पिट्स इंडिया एक्ट के आ चीज़ा हुई सी, बट पिट्स का मतलब तो नहीं पता, ठीक है। पिट्स का मतलब की है जी, जो आप एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिवें पिछला एक्ट किया रेगूलेटिंग एक्ट 1773, इसका मतलब ये सी ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगूलेट करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी नूं। नैक्सट पिट्स इंडिया एक्ट, इनका मतलब ये है जी, पिट्स का कोई मतलब नहीं है। पिट्स इज़ अ नेम। पिट्स एक बंदे का नाम है। वो बंदा कौन है जी? उस टाइम पे ब्रिटिश CM, ठीक है जी, सॉरी PM, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर सी ब्रिटिश था विलियम पिट्स। तो उनके नाम तो एक पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पेश किया गया थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ईस्ट इंडिया कंपनी। हुण पिट्स इंडिया एक्ट दे विच की होया? पहला पॉइंट, हजे तक अपने को सिर्फ कौन सी? कोर्ट ऑफ डायरैक्टर्स सी, कोर्ट ऑफ डायरैक्टर्स सी। हुण एक होर बॉडी इंट्रोड्यूस की गई बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट इज़ BOC। BOC मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल। हुण ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल मैटर्स ते पोलिटिकल मैटर्स नूं डिवाइड कर दिता गया। COD विल टॉक अबाउट, मतलब विल डील विद कमर्शियल, एंड जिहड़ा अपना BOC है वो डील करेगा पोलिटिकल मैटर्स के नाल। मतलब की है, जिहड़ा पिट्स इंडिया एक्ट दे नाल एक डबल गवर्नमेंट की स्टार्टिंग हुई। कदी स्टार्टिंग हुई सर? डबल गवर्नमेंट की। डबल गवर्नमेंट की हुंदा सर? डबल गवर्नमेंट मीन्स कोर्ट ऑफ डायरैक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरैक्टर्स विल टॉक अबाउट द कमर्शियल matters and
बोर्ड ऑफ कंट्रोल विल डील विद दी पोलिटिकल मैटर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के मैटर्स नूं डिस्टिंग्विश कर दिता गया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू पिट्स इंडिया एक्ट 1784। हाँ जी सर, डबल गवर्नमेंट की स्टार्टिंग हो गई जी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 दे विच। फर्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। सैकेंड पॉइंट जिहड़ा अपना देखो, फर्स्ट टाइम टेरिटरीज मतलब जिथे कंपनी की जगह, ठीक है, टेरिटरीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर कंसीडर्ड एज ब्रिटिश पोसैशन इन इंडिया। मतलब देखांगे जी, रट्टा नहीं मारांगे। फर्स्ट टाइम टेरिटरीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर कंसीडर्ड एज ब्रिटिश पोसैशन इन इंडिया। लो जी, हुण जिहड़े ईस्ट इंडिया कंपनी दी जगह सी इंडिया दे विच, उन्होंने ब्रिटिश ने कहा भी ये साडी जगह है। तो हौली हौली तुसीं देखोगे ये जिहड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही है जी, ईस्ट इंडिया कंपनी के उपर ब्रिटिश गवर्नमेंट है। हुण ईस्ट इंडिया कंपनी जिवें जिवें चल रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट उवें उवें नूं की कर रहा है, रेगूलेट कर रहा है। हुण की होएगा जदों ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगूलेट कर रही होगी ईस्ट इंडिया कंपनी नूं, दैन हौली हौली की है उन्होंने एबोलिश कर देगी, ठीक है। दैन रूल कौन करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है जी। हौली हौली प्रोसैस किद्दां होगा, ये जस्ट उन्हां दी नींह पत्थर खींच रहा जी। हौली हौली तुसीं देखोगे 1858 के एक्ट दे विच ईस्ट इंडिया कंपनी नूं बिल्कुल ही एबोलिश कर दिता जाएगा, तो फिर सीधा रूल कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तां करके कहते हैं जी बैटल दी प्लासी तो बाद 1757 तो लैके 1857 तक किन्ने रूल किया? कंपनी ने। 1857 तो लैके 1947 तक किन्ने रूल किया? ब्रिटिश क्राउन ने। हजे भी जो किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मैं फिर रीकैप कर रहा, दो चीज़ा है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी है, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट है। हुण ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने लिए आई सी, बट वो पोलिटिकल मैटर्स दे विच पै गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्होंने कंट्रोल करना, रेगूलेट करना स्टार्ट करता। जिमें जिमें आ ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिमें जिमें एक ईस्ट इंडिया कंपनी चलेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट इनू फॉलो करेगी, इनू रेगूलेट करेगी, तो एंड ते इनू एबोलिश कर देगी, ठीक है। एबोलिश करने तो बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने ते डायरैक्ट सीधा शासन करेगी, वो भी आप देखेंगे। नैक्सट पॉइंट है जी, फर्स्ट टाइम टेरिटरीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर कंसीडर्ड एज द ब्रिटिश पोसैशन इन इंडिया। नैक्सट है जी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिछले लैक्चर आप किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की एग्जीक्यूटिव कौंसल के किन्ने मैंबर सी? कोई दस सकता है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की एग्जीक्यूटिव कौंसिल के किन्ने मैंबर सी? सर 4 मैंबर सी, बिल्कुल ठीक है जी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की कौंसिल के किन्ने मैंबर सी? 4 मैंबर सी, ठीक है। पहला हुण इहदे च की होगा, वो जिहड़े 4 मैंबर है जी उन्होंने 3 मैंबर कर दिता गया, 3 मैंबर, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की कौंसिल के 4 मैंबर से उन्होंने 3 मैंबर कर दिता गया। ये क्वेश्चन पता जी कितने आया? ये क्वेश्चन 2018 PCS का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन सी। तो उन्हें एक स्टेटमेंट सी कि अकॉर्डिंग टू पिट्स इंडिया एक्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौंसिल मैंबर वर रिड्यूस्ड फ्रॉम 4 to 3। ये दसना सी आप भी स्टेटमेंट करैक्ट है कि नहीं, एंड स्टेटमेंट बिल्कुल करैक्ट है जी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की कौंसिल के 4 मैंबरस तो 3 मैंबरस तक कर दिता गया। नैक्सट आप पढ़ांगे पिट्स इंडिया एक्ट तो बाद चार्टर एक्ट। ਜਿਹੜੇ भी पॉइंट मैं नोट करवा रहा हूँ सीधे सीधे क्वेश्चन ही है, तो मॉक टैसट के भी तुहानूं यही क्वेश्चन मिलणगे, तो ध्यान नाल करना है इनू, ठीक है। कल नूं शामी 5 बजे एग्जैक्ट तुहानूं मॉक टैसट मिल जाएगा।
WhatsApp ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨੇ WhatsApp ग्रुप ज्वाइन नहीं ਕੀਤਾ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ WhatsApp ग्रुप ज्वाइन ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ WhatsApp ग्रुप ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੌਕ ਟੈਸਟ 5 ਵਜੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਂਡ 8 ਵਜੇ ਉਹਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਵਜੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। 8 ਵਜੇ ਉਹਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਸੰਡੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੌਪ 10 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੌਪ 10 ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਓਨੈਸਟੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਬਣਦੇ ਆ ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਐਫਰਟਸ ਲਾ ਸਕੀਏ ਉਸ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 80 ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਕਿ 80 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 90 ਜਾਣ ਅਗਲੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਘਟ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਵਿਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਯੂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1813। ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰਟਰ मतलब दस्तावेज। एक चार्टर के उत्ते उन्होंने पॉइंट्स लिख के तुहानूं फड़ाते भी ये एक दस्तावेज है, इहदे ते जिहड़ियां पॉइंट्स लिखे हैं तुहानूं इंप्लीमेंट करने पैणगे। उन्होंने कि उन्होंने कहता चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 पढ़न तो पहला एक फिर स्टोरी है। सारी पॉलिटी दे विच टेंशन नहीं लैनी, स्टोरी प्लस फैक्ट, स्टोरी प्लस फैक्ट, ताकि तुहानूं दोनों चीज़ां एंड ते याद हो जाण। ठीक है, हुण देखो आपां पहलां डिस्कस कीता सीगा 14th सेंचुरी दे विच कि जदों ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, ਜਦੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟਰੇਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟਰੇਡਰ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ 3-4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। 1813 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ। ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟਰੇਡਰਸ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀ ਸੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ट्रेडिंग कंपनीज़ का तो इंडिविजुअल ट्रेडर्स का। दसो जी की होएगा? सर तुसी दसिया सी कि जिहड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके नाल ही सारिਆਂ ने की है अपने पैसे शेयर होल्डर सारे बने तो उन्होंने की करता ईस्ट इंडिया कंपनी ने इत्थे भेजता। हुण जिहड़े शेयर होल्डर बने सी हुण उन्हां कोल सारे साधन ने, वो आपे ही ट्रेड करना चाहुंदे है जी। ये प्रोटेस्ट सी। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਵਰਡ ਨਵਾਂ ਆਇਆ? ਮੋਨੋਪੋਲੀ। ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਵਰਡ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਫॉर एग्जांपल ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੱਖਣ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਹੀ ਵਿਕੇਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੋ ਗਈ? ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਮੱਖਣ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਮੋਨੋਪੋਲੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮੋਨੋਪੋਲੀ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ? ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸੀ। ਕਾਹਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸੀ ਜੀ? ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸੀ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕਾਹਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸੀ? ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਤੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਦ ਸਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਐਬੋਲੀਸ਼ਨ of monopoly
ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। पार्शियल अबोलिशन का मतलब की है जी मोनोपली का, कि सिर्फ सारे ट्रेड ते मोनोपली बंद कर दी गई सी ईस्ट इंडिया कंपनी की, सिर्फ किस नूं छड्ड के, ट्रेड ऑफ टी विद चाइना। चाइना के नाल जिहड़ा चाह का व्यापार सी ना, उस ते सिर्फ मोनोपली बंद नहीं की गई, बाकी सारी आइटम्स ते ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपली बंद कर दी गई सी। सर इहदा मतलब ये होएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी हुण ट्रेड ही नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं। मोनोपली बंद करने का मतलब ये है जी, ईस्ट इंडिया कंपनी भी ट्रेड कर सकती है, बाकी सारे इंडिविजुअल ट्रेडर्स भी ट्रेड कर सकते हैं, तो बाकी सारिया कंपनीज भी ट्रेड कर सकती हैं। हुण इंडिया दा ट्रेड इज़ ओपन फॉर ऑल। नैक्सट पॉइंट, चार्टर एक्ट 1813। नैक्सट पॉइंट जो आप गल करिए तो जिहड़ा क्रिश्चन मिशनरीज़ का मतलब की होंदा जी, जिन्हों का एक मिशन होंदा, जिहड़े कि एक मिशन ते होंदे है। तो क्रिश्चन मिशनरीज़ का मतलब की है कि जिहड़े क्रिश्चन धर्म नूं की है अपना प्रचार करना चाहुंदे है, स्प्रैड करना चाहुंदे आपदा रिलीजन, उन्होंने इजाजत दे दी गई सी इंडिया दे विच आउण दी। क्रिश्चन मिशनरी वर अलाउड, ठीक है, मतलब सीधा पूछ सकते हैं कि क्रिश्चन मिशनरीज़ नूं कदों इजाजत मिली सी, किहड़े एक्ट दे विच इंडिया आउण दे लई, इंडिया प्रचार करने दे लई? तो 1813 के चार्टर एक्ट दे विच। नैक्सट जी, एक लाख पर ईयर उन्होंने अपने जिहड़े ब्रिटिश ने कहा कि 1 लाख पर ईयर, ठीक है, एजुकेशन ते जरूर लाया जाएगा। किहदे ते लाया जाएगा जी? एजुकेशन ते। ईस्ट इंडिया कंपनी है जिहड़ी, वो एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए पूरे यतन करेगी, 1 लाख पर ईयर इन्वेस्ट करेगी कहने दे एजुकेशन ते। क्रिश्चन मिशनरीज अलाउड कर देते। पार्शियल अबोलिशमेंट ऑफ मोनोपली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, सिर्फ एक चीज़ से जिहड़ा ट्रेड का जिहड़ा अपना उनकी मोनोपली खत्म नहीं की गई, वो किहड़ा सी? ट्रेड विद चाइना, ठीक है। कहना ट्रेड सीगा, टी का ट्रेड सीगा, एक गल्लां च ही सी, ठीक है, अदरवाइज समगलिंग चलती सी जी, ठीक है। तो ये सीगा अपना चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 के 20 साल बाद एक होर एक्ट आएगा, उसके 20 साल बाद एक होर एक्ट आएगा, ठीक है, आप डिस्कस करांगे। तो ये अपना सीगा चार्टर एक्ट 1813। इस तो बाद आप डिस्कस करांगे चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट जी, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 20 साल के बाद रिपीट किया गया। तुहानूं दस्सिया सी पहलां चाइना दे नाल ट्रेड जिहड़ा सी हुंदा अपना, वो की है, उन्होंने उहदे ते ईस्ट इंडिया कंपनी की अबोलिशमेंट नहीं की गई मोनोपली की। तो हुण की हो जाएगा, ये पॉइंट अपने को आ जाएगा, कंप्लीट चाइना दे नाल भी ट्रेड हुण मोनोपली नहीं रहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी की। कंप्लीट अबोलिशन ऑफ मोनोपली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मोनोपली बिल्कुल ही अबोलिश कर दी गई जी। पहले पॉइंट जो आप लिखा 1813 च भी चाहे चाह का ट्रेड है चाइना नाल चलूगा, बट वो भी की है हुण अबोलिश कर दिता गया। हुण जिथे मर्जी जिंदे नाल मर्जी सारिया कंपनियां इंडिविजुअल ट्रेडर्स फ्रॉम इंग्लैंड कैन ट्रेड, ठीक है। नैक्सट चार्टर एक्ट 1833 दे विच हुण देखो, अपना पहला गवर्नर्स होंदे सी 3 प्रेजिडेंसीज दे, उन्हां चों एक यूनीफाइड स्टेट किहड़ी बना दी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हुण गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नूं भी की कर दिता गया? गवर्नर जनरल ऑफ GGB नूं भी की कर दिता गया? किंदे च इनकलूड कर दिता गया? GGI, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। एक प्रॉपर यूनीफाइड जी स्टेट बना दी सारी इंडिया की, वो कौन बना दी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड सर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन सी? आंसर इज विलियम बेंटिक।
विलियम बेंटिक। ठीक है जी। फस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन सी? विलियम बेंटिक। एंड ये तुहाडे मॉक टेस्ट का क्वेश्चन पक्का है जी, ठीक है, याद कर लो। नैक्सट आप देखांगे एक लॉ मैंबर ऐड किया गया। लॉ मैंबर was added to the executive council of गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, GGI, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखो जी, लॉ मैंबर ऐड कर दिता गया। हुण आपां मैंबरां दी जे गल करिए तां आपां नूं भुल्लिआ नहीं होएगा भी 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। 1784 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। that member was law member ਤੇ ਉਹ law member ਕੌਣ ਸੀ? very very important, he was Lord Macaulay। ठीक है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ किते लाइक फिल्म वगैरह तुसीं सुनिया होगा मैकॉले की औलाद, ठीक है, तो मैकॉले की औलाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैकॉले वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश मीडियम। ठीक है, मतलब इंग्लिश है जी वो किन्ने स्टार्ट की सी? लॉर्ड मैकाले ने। एंड ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट लॉ मैंबर, ठीक है, एडिड इन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो जो लॉर्ड मैकाले ਨੂੰ लॉ मैंबर बनाया गया तो कोडिफिकेशन ऑफ लॉ हुई। कोडिफिकेशन ऑफ लॉ का मतलब की है, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ इंडियन पैनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ कोडिफिकेशन ऑफ लॉज हुई है जी, उनके पिछे ਕਿਹੜਾ पर्सन है? लॉर्ड मैकाले। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲॉज ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲॉर्ड ਮੈਕਾਲੇ ਨੇ ਕੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲॉज ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ? ਲॉर्ड ਮੈਕਾਲੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ, ठीक है जी। लॉ मैंबर वाज एडिड टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ही वाज लॉर्ड मैकाले। लास्ट पॉइंट इहदे च आप ऐड करांगे, लास्ट पॉइंट है जी कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज। कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज। तो देखो कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज का की मतलब है जी? देखो जिवें आपां हुण गल करते हैं IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज या ICS कह देते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज। तो इंडियन सिविल सर्विसेज की नींह रखनी इत्थों शुरू हो गई सी 1833 दे विच, ठीक है। तो इहदे च चलदा सी कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज का मतलब ये सी कि तुहानूं जिहड़े ICS जिहड़े सिविल सर्वेंट होणगे वो नोमीनेशन नाल चुने जाणगे। किहदे नाल जी? नोमीनेशन नाल। नोमीनेशन का मतलब की हुंदा जी? उस बंदे नूं IAS बना दो, दैट्स इज नोमीनेशन, ठीक है, फेवरेटिज्म। ओके, तो ये जिहड़ा सिस्टम है ये इंडियंस वालों इनका विरोध किया गया। तो तुसी देखोगे इदों ही अगले एक्ट दे विच जदों पढ़ांगे चार्टर एक्ट 1853, तो उहदे विच जिहड़ा अपना ओपन सिविल सर्विसेज मतलब की है, दो तरह का ICS होने लग पिया, एक च एग्जाम तो एक च नोमीनेशन। मतलब की है इंडियंस की है अलाउड कर दिते गए ICS का पेपर लिखण दे लई, ठीक है। इस तो अगले एक्ट दे विच आपां ओह पढ़ते हैं, ये सीगा अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सॉरी इट वाज चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। नैक्सट आप देखेंगे 53। चार्टर एक्ट 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਜੀ?
फस्ट पॉइंट आप नोट करांगे सब तो पहला मैकले जिहड़ा आप हुणे पढ़िया मैकले कमेटी ऑन सिविल सर्विसेज। ठीक है, मैकले कमेटी बैठी सी सिविल सर्विसेज ते कदों 1854 दे विच। ठीक है, तो इन्हां दी रैकमेंडेशन दे नाल जिहड़ा ICS सिस्टम स्टार्ट हो गया। ठीक है, एग्जाम वाला भी ते नॉमिनेशन वाला भी। ठीक है, तो एग्जाम वाले की गल करिए तो इट वाज प्राउड मूवमेंट फॉर इंडिया। ठीक है, कि SP सिन्हा से जिहड़े अपने ही बिकेम फर्स्ट इंडियन टू क्लियर ICS। He was the first Indian to clear ICS। ठीक है जी, SP सिन्हा was the first Indian to clear ICS Indian Civil Services। इन्होंने कदों की सी जी 1863 ਦੇ ਵਿੱਚ। ओके, it was SP सिन्हा और SN टैगोर। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, एग्जैक्ट देख लेने आप नाम। हाँ जी, SN टैगोर है जी, मैनू कन्फ्यूजन हो रही सी इहदे च। इट वाज SN टैगोर नॉट SP सिन्हा। ओके, सो मैकॉले कमेटी ऑन सिविल सर्विसेज 1854। दैन ICS एग्जाम नॉमिनेशन, एग्जाम भी होने लग पाया, नॉमिनेशन नाल भी होने लग पाया। दैन इट वाज प्राउड मूवमेंट ऑफ इंडिया दैट SN टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्लियर इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है जी, तो 1853 तक अपने लॉ हो गए। नैक्सट वीडियो के विच आपां 3 लॉ होर करांगे। दैन आपां डिस्कस करांगे कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली बारे। कैबिनेट मिशन प्लान दे विच कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली नूं बनाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए रेडी होएगी। 9 दिसंबर को उन्होंने पहली मीटिंग होएगी, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ चुनणगे। ठीक है, फिर वो सारा प्रोसैस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। ड्राफ्टिंग कमेटी बनेगी, यूनियन एंड पावर कमेटी बनेगी, फंडामेंटल राइट कमेटी बनेगी। आप देखांगे उस कमेटियां के हैड कौन है, किवें किवें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। फिर आप देखांगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जोड़े सोर्सिज है वो कितों कितों आप की लिया, USA तो की लिया, इंग्लैंड तो की लिया, आयरलैंड तो की लिया। ठीक है, दैन आप गल करांगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन ते पहुँचांगे, जिनका पहला चैप्टर आप करांगे डैट इज़ प्रीएम्बल, संविधान का प्रीएम्बल। ठीक है जी, तो अज लई इन्ना ही। ठीक है, तुसीं इन्हां नूं रिवाइज करना है। इन्हां विच्चों ही तुहाडा जिहड़ा मॉक टेस्ट बनेगा सीधे सीधे क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक कल दे पेपर लई एंड थैंक यू वेरी मच। तो प्लीज़ जिहड़ा तुसीं अपना WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उस तो बिना तुहाडे कोल टैस्ट नहीं पहुँच सकता। ठीक है, क्योंकि असीं WhatsApp ग्रुप ते टैलीग्राम ग्रुप दोनों ते ही भेजांगे। बट टैलीग्राम ग्रुप ते भी जिन्होंने भेजांगे उन्होंने WhatsApp ग्रुप ते ज्वाइन करके ही सानूं आंसर आपदे अपने नंबर भेजने पैने आ। ठीक है जी, एक होर रिक्वेस्ट सी कि जिहड़ा अपना WhatsApp ग्रुप है उन्होंने असीं मंडे टू फ्राइडे म्यूट रखांगे कि ओनली टीचर्स कैन मैसेज। ठीक है, स्टूडेंट मैसेज नहीं कर सकेंगे। सिर्फ सैटरडे संडे ओपन कराया करांगे ताकि तुसीं अपने डाउट्स पूछ सको, अपना जिहड़ा पेपर सॉल्व किया उनके नंबर शेयर कर सको। ठीक है जी, बाकी शेयरिंग तुसीं कर ही रहे हो। ठीक है, तो होर इनू शेयर करना है, अपनी फैमिली नूं आपां इनक्रीज करना है। ठीक है, बाकी थैंक यू वेरी मच। ठीक है, कीप लर्निंग।